and the view. Good morning, students. Aryan, Prathak, tell me that whether the voice is coming clear and the video is coming clear. Are you able to listen to me? आर्यन, प्रथक, मुझे सुन पा रहे हो सही से? आवाज आ रही है और वीडियो आ रही है? टेल मी बेटा. प्रथक, you can type also if you don't want to say, but it's better that you on your video also and tell me whether you are able to listen to me. आप मुझे लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सही से? Are you able to listen to me? बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही है? I'm asking that. Are you able to listen to me? Are you able to listen to me? Yes, ma'am. Okay. So this is the presentation by which firstly we are going to discuss and revise what we have already read in the class. As you can see, there is a flower image which is shown, and it is describing that how if you keep a mirror in between, then the mirror will be showing you the same flower image, color, shape, size, exactly the same, but the left and right inversion is there because it is which type of mirror? Which type of mirror is it which is showing exactly the same size of object and but the left is appearing Plane right? mirror. Plane mirror. So it is supposed to have a plane mirror in between. So first slide is this. Now let us move to the next slide. So which is the phenomena which is going on? How we are able to see the image? Which phenomena of light is going on here? Which process? Ma'am, reflection. Yes, it is the process of reflection. So now we are going to start the slideshow. So this is the slideshow. Are you able to see the slideshow? Yes, ma'am. Okay. So the same thing, if we keep a plane mirror in between, we are going to see the same size object and the reflection will be exactly equal to the object. But the right will appear the left so that the English alphabets you are seeing are looking inverted, laterally inverted. So that is the phenomena of plane mirror image formation because it is the introduction. So what are the contents we are going to see? How do we see common phenomena, straight line path,
particle in the wave nature of the light, spherical mirrors, how to draw the ray diagrams, what are the image formation by the mirrors, image formation by the convex mirror, concave mirror, and sign conventions of spherical mirrors, mirror formula. So now you are able to see these objects. One is blue color, one shape of blue color, maybe it is a sphere. Do you see? Are you able to see? Blue sphere. Yes, ma'am. And then next is what on the table, next object is kept is a square, green square. Are you able to see that? अपनी क्लास अटेंड करो. Yes, ma'am. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An octagon is there, 8-sided figure. Octagon is there, and on these three objects, what is happening here on these three objects? What is happening here? Ma'am, light reflect कर रही है इस पे. Light is getting reflected. All the rays which are Yes, coming ma'am. from the bulb are striking the objects, and we are able to see the objects. And where there is no object, we are not able to see any object there. So that is the phenomena. We are unable to see anything in the dark room. That is the point which is written above. You are able to see that? In the dark room, Yes, we are ma'am. unable to see anything. But on lighting the bulb, the room, the materials which are there in the room are visible. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So this is the way we see when the what makes things visible? What is making the things visible? Tell me, what is making the things visible? Ma'am, reflection. Reflection of light. That means light is the energy, that the same definition we have written in the starting of the notes. So light is the energy which makes the things visible by the reflection of light. Is it clear? Yes, ma'am, clear. An object reflects light that falls on it. The reflected light, when received by our eyes, enables us to see the things. Are you getting the point? An object reflects the light that falls on it. जो भी लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस कर देता है. एंड जब हमारी आंखों में वो लाइट पड़ती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, देख पाते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now common phenomena. Common phenomena of light are. What are the common phenomena of light? These are the common phenomena which are written here. नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइट के रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से होती हैं. कुछ इसमें से रिफ्लेक्शन से होती हैं, कुछ इसमें से रिफ्रैक्शन से होती है. अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा नहीं है बिकॉज रिफ्रैक्शन सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, और पहला पार्ट रिफ्लेक्शन है जिसमें सिर्फ लाइट की रेज पड़ती हैं ऑब्जेक्ट पे और वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आंखों पे पड़ती हैं. तो जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो फिर तभी हमें दिखाई देती हैं. पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी आंखों के अंदर जा रही है लाइट, हमारी आईज की लेंस से जाती है. वो जब हमारी आईज की लेंस से जाती है, किसी और मीडियम से लाइट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है. ठीक है. तो कुछ चीजें रिफ्लेक्शन से होती है, कुछ चीजें रिफ्रैक्शन से होती है. दोनों में ही इमेजेस बनती हैं. इमेज बनती है तभी हमें दिखाई देता है. तो पहला फिनोमिना जो हमें दिखता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर. मिरर से इमेज बनती है. हम हमेशा कभी कभी डेली लाइफ में मिरर यूज करते हैं. घर में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं. कभी कभी डाइवर्जिंग रोड्स होते हैं, बहुत ज्यादा हिली एरियाज में जो रोड्स जिनको मतलब कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े मिरर लगाते हैं कोने पे, ताकि दूर से आती हुई ऑब्जेक्ट का दोनों तरफ इमेज बन सके, ताकि लोगों के एक्सीडेंट्स कम हो सके. हमारी कार में या फिर हमारी बाइक में साइड व्यू मिरर होता है,
तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेशन की वजह से ही हो पाया। इमेज फॉर्मेशन का ये हमारा यूजेस है हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज से जब हम हमने जब कौन सा प्रैक्टिकल किया है हमने अभी तक? एक प्रैक्टिकल किया है हमने अभी, फाइल में भी लिखने को कहा है आपको। कौन सा प्रैक्टिकल करने को कहा है मैंने आपको? लीफ को लेकर हमने लीफ पील निकाला था, और फिर लीफ पील निकालने के बाद हमने उसको स्लाइड पे रख के देखा था। तो हमको क्या दिखे थे? एपिडर्मल सेल्स में बीच बीच में हमें क्या दिखे थे? बहुत सारे स्टोमेटा। स्टोमेटा दिखाई दिए। ठीक है, तो स्टोमेटास हमको दिखे थे कैसे? जैसे अगर ये लीफ एपिडर्मल टिश्यू है तो बीच में एक पोर दिखेगा, और पोर के दोनों तरफ हमें क्या दिखेंगे? गार्ड सेल्स दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें दो गार्ड सेल्स दिखते हैं, एक इधर बीन शेप का होता है और एक इधर होता है, बीच में स्टोमेटा होता है, होल। तो ये हम कैसे देख पाए? हाउ वी आर एबल टू सी दिस स्टोमेटा? हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? ओके, तो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप यूज किया। तो माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखा हमें? माइक्रोस्कोप में क्योंकि ऑब्जेक्ट तो विजिबल होते हैं सिर्फ लाइट की वजह से। अभी हमने पढ़ा कि लाइट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट विजिबल। हमें स्टोमेटा दिखा था तो हमें भी कोई लाइट तो ली होगी। हमने कौन सी लाइट ली थी इसमें? सनलाइट ली थी। तो फिर कैसे आई माइक्रोस्कोप के अंदर वो लाइट? लेंस माइक्रोस्कोप में लेंसेस ने तो हमें दिखा दिया मैग्नीफाई करके, पर माइक्रोस्कोप के जो नीचे वाली वो होती है, बेस होता है माइक्रोस्कोप का, वहां पर एक ऐसे करके रिफ्लेक्टर वाला मिरर लगा रहता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की एक नेक होती है, नेक पे यहाँ पर एक स्टेज होता है, स्टेज पे हम लोग स्लाइड सेट करते हैं। यहाँ पर नॉब्स होते हैं कुछ जिनसे हम मैग्निफिकेशन सेट करते हैं। यहाँ पर एक आई पे भी लेंस होता है जिसमें हम अपनी आईज को देखते हैं, और एक यहाँ पर बीच में भी एक रिवॉल्विंग लेंस सिस्टम होता है। पर जो लाइट फेंकता है वो कौन सा होता है? वो रिफ्लेक्टर मिरर होता है। जब उसमें लाइट पड़ती है तो वो यहाँ से पार होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और वो इधर की तरफ स्टेज की तरफ आती है। क्लियर? माइक्रोस्कोप में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके देखा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर से। तो इमेज फॉर्मेशन हमारे लेंसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स तो हमें रिफ्लेक्टर ने दिया, पर इमेज किसने बनाई? लेंसेज ने बनाई, क्योंकि माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। एक तो ऑब्जेक्ट के पास वाला जिसमें 10x 45x ये सब होता है, और एक आई पीस होता है जिसमें हम आईज से ऐसे करके देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन लेंसेज से भी हमें पढ़नी है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन हमें मिरर से भी पढ़नी है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन से होता है। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो भी हमें पढ़ना है कि ये रिफ्रैक्शन से होता है, बट ये हमारे सेकेंड पार्ट में है चैप्टर में। लेंसेज का पार्ट हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है, वो अभी एग्जाम में नहीं आ रहा। एग्जाम में सिर्फ कहाँ तक आ रहा है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन और उसका मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है छोटा सा, और फिर उसके बाद क्या है आपका? जस्ट मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन के बाद उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको तैयार रहना है। एनसीईआरटी से करो, हेल्प बुक से करो, चाहे आप उसको ऑनलाइन देख लो। इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव और कॉन्वेक्स के आपको न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। एनसीईआरटी के तो सबसे पहले करने हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। देन बेंडिंग ऑफ यस मैम। मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये यही क्या कहलाता है? बेंडिंग क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। कि जब एक किसी डेंस मीडियम, यानी मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइडल ग्लास का स्लैब रख दिया, एक क्यूबॉइडल ग्लास लिया मैंने, कांच, और उसका एक स्लैब रख दिया। अब मैं इधर से एक लाइट भेजूंगी, लाइट सोर्स एक तरफ से, तो जब ये एयर में रहेगा तब तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और बिल्कुल
मतलब कहीं पर भी बेंड नहीं हुआ, बट जैसे ही ये इस ग्लास के अंदर जाएगा, तो जब मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाए, अंदर की तरफ झुकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड एकदम से कम हुई, स्ट्रेट नहीं गया, अंदर की तरफ झुका। और जब यहाँ पर भी दोबारा इसे बाहर निकलना होगा, तो दोबारा मैं इस पे एक नॉर्मल बनाऊंगी, तो ये अब फिर दोबारा बाहर की तरफ जाएगा। तो ये लाइट बेंड होती है हल्की सी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से, पतले मीडियम से कांच यानी कि डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट की रेस को क्या होता है? बेंडिंग होती है। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है, बाद में हम पढ़ेंगे इसे। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड भी रिफ्रैक्शन से होता है, उसके अंदर बहुत रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, उसमें दोनों होते हैं। तो ये भी एक फिनोमिना है। कलर्स फॉर्म्ड ऑन थिन ऑयल फिल्म्स, ऑयल फिल्म्स पे आपने देखा होगा कलर्स से बनते रहते हैं, तो वो सब भी क्या है? लाइट का फिनोमिना है। कलर्स फॉर्म्ड इन द सोप बबल्स, ऐसे करके जब हम सोप की एक उसको फिल्म को ऐसे करके फूंक मारते हैं तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। 7 कलर्स रेनबो के वो हमें दिखते हैं। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन वाइल राइजिंग एंड सेटिंग, जब हम सनराइज देखते हैं तो हमें रेडिश अपीयरेंस दिखती है सन की, सॉरी पूरी स्काई की, स्काई पूरा रेड रेड दिखता है। और जब सनसेट होगा तब भी पूरा रेड पिंक ऐसे करके दिखता है, तो वो सब भी हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ब्लू कलर स्काई का, जब सनसेट और सन नहीं सेट और राइज नहीं हो रहा, जब नॉर्मल डे है, जैसे अभी नॉर्मल डे है, अब आफ्टरनून होगा, तब हमें कैसा दिखेगा? स्काई ब्लू दिखेगा। एंड मैनी मोर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से फिनोमिना जो किसकी वजह से हो रहे हैं, या तो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहे हैं या तो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है यस मैम। सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है क्लास, मैं एक बार अटेंडेंस भेज दूं ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो तब मैं आपको ये वाला बताऊंगी। इसमें स्मॉल सोर्स और थोड़ा सा बिग सोर्स लाइट का बताया है कि स्मॉल सोर्स किस तरह से रोशनी को भेजेगा एंड बिग सोर्स किस तरह से रोशनी को भेजता है। लाइट रेज हमेशा किस में जाएंगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर रखा है, मैम आपने कौन से मैंने नहीं हो रहा है, ये प्ले नहीं हो रहा है क्या? मैम मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कौन सी फाइल बनाने के लिए कहा है? मैं तो कल एब्सेंट था। अच्छा, फाइल बनाने के लिए पहले जब हमने स्टोमेटा की स्लाइड बनाई है तो वो आपकी लैब मैनुअल में लिखना है, वो प्रैक्टिकल एज प्रैक्टिकल नंबर 1, क्योंकि वो जब फाइनली बोर्ड्स में आपकी इंटरनल असेसमेंट जाता है तो उसमें आपके जितने भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो 1 बाय 1 आपको नोट डाउन करने होते हैं। तो पृथक ने करे हैं, वो आगे वो प्रैक्टिकल दिए होते हैं, उनसे देखकर बस अंदर लिखने होते हैं। डायग्राम में तो डायग्राम बनाना होता है, तो उसमें दोनों डायग्राम बनाने, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ दिया है जो आपने कॉपी में भी बनाया है, और एक उसमें स्टोमेटा की इमेज बनाना जरूरी है। तो सभी बच्चों को स्टोमेटा की इमेज भी बनानी है उसमें, ठीक है, और वो ओके। प्रैक्टिकल करना है। ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो पाथ में आ जाएगा लाइट के तो फिर क्या होगा? शैडो बनेगी। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन एट द टॉप? द शैडो विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, a small source of light cast a shadow of an opaque object। यही हमें दिखा रखा है स्क्रीन पे, हमें शैडो दिखती है अगर बीच में कोई आ गया लाइट के, कोई ऑब्जेक्ट। कैन यू सी? लाइट चली और एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी शैडो बनी है। शैडो बड़ी बन सकती हैं, हमारी खुद की शैडो हम 3 टाइम अगर देखें, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और बिल्कुल शाम के वक्त, तो हमारी शैडोज की लेंथ क्या होती है? अलग अलग
होती है। ठीक है, और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर स्लिट है, स्लिट मतलब कोई गैप है, तो क्या होगा, शैडो कैसे बनेगी, स्क्रीन पे शैडोज दोनों तरफ बनेगी, जहां पर लाइट रुक रही है, और जहां पर लाइट नहीं रुक रही वहां पर शैडो नहीं बनेगी, वहां नहीं पर बनेगी। लाइट दिखेगी। तो बीच में हमें क्या दिखी, लाइट। लाइट दिखी। और शैडो कहाँ बनी है, ऊपर की तरफ, क्योंकि Right ऊपर और वाला रास्ता ब्लॉक था। ऊपर वाले रास्ते में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ यहाँ हमें शैडो मिली, यहाँ पर और यहाँ पर, और बीच में हमारी लाइट आ गई, क्योंकि बीच में क्या थी, ओपनिंग थी। यहाँ पे क्या थी, एक स्लिट थी। स्लिट मतलब ओपेक, सॉरी, स्लिट मतलब ओपनिंग। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि Yes, ma'am. हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। ठीक है, अब हम Yes. नेक्स्ट उस पे आएंगे, फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एग्जिबिट वेव नेचर। जब लाइट कभी कभी इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे से, कभी कभी हमने देखा होगा लाइट रेज एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, जैसे कि दो सोर्स बना दिए हमने लाइट के, और उन दोनों से लाइट आ रही है, तो लाइट अब क्या करेगी, कहीं पर दिखेगी कहीं पर नहीं दिखेगी, कहीं पर ब्राइट दिखेगा कहीं पर डार्क दिखेगा, कहीं पर ब्राइट दिखेगा कहीं पर डार्क दिखेगा। तो ये बताता है कि वेव्स आपस में क्या कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वेव, वहां पर ज्यादा इंटेंसिटी हो गई लाइट की, जहां पर इंटरसेक्ट नहीं करी वहां पर कम, तो वहां पर डार्कनेस दिख रही है। तो लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, इसका मतलब लाइट वेव नेचर भी होती है, और लाइट डिफ्रैक्शन भी करती है, ये भी वेव नेचर की वजह से होता है। ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। यस मैम। डिफ्रैक्शन मतलब फैलना, स्प्रेडिंग। तो वेव नेचर, पोलराइजेशन तो अनपोलराइज लाइट तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का है, वो हम नहीं बता रहे। लाइट किस किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो सकती है, मेटल्स से भी हो सकती है, जिस भी सरफेस, जो भी सरफेस ज्यादा शाइनिंग है उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, और जो सरफेस ट्रांसपेरेंट है उनसे लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है, मतलब बेंड हो सकती है। अभी हमारी लॉज हैं, मैम आर यू एबल टू सी? यस मैम Angle of incidence is equal to angle of reflection. Yes, ma'am. Incident ray is normal to यस मैम। all the rays are in the same plane. Plane mirror किस तरह से इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर प्लेन मिरर की इमेज दिख रही है, आप कैसे बना रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा है तो इन्वर्टेड इमेज उसकी बनी है, सेम जगह पर बनी है, सेम डिस्टेंस पे। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज साइज इज equal to the size of object. Spherical mirrors. यस मैम Mirrors whose reflecting surfaces are curved. आप देख रहे हो, कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी इनवर्ड है वो कॉनकेव है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, शाइनिंग सरफेस, वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर। पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पोल पॉइंट आपको पता है मिडल ऑफ द मिरर। पैरेलल रेज आती हैं तो सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन आपको ऑरेंज से दिख रही है वो कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी रेज पैरेलल वाली आकर मीट हो जाती हैं या फिर वहां पर डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। फोकल लेंथ, फोकस से पोल की दूरी होती है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, कॉपी में लिखे होने चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का, तो आर का भी फॉर्मूला हो सकता है 2f, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, जब r का फॉर्मूला 2f है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f,
r/2 R/2 इज इक्वल टू f। ठीक है, ये हो जाएगा। रेस कंसिडर्ड फॉर द रे डायग्राम बनाने के लिए आप रेस को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, the intersection of at least two refracted rays gives the position of image of the point object. Any two of the following rays can be considered for locating the image. जहां पर कोई भी दो रेज मिल जाती हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। तो रूल भी बताए हैं, अगर पैरेलल रे है तो वो फोकस से पास होती है, और अगर प्रिंसिपल फोकस से रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस से अगर रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट, जब आप देख रहे हो पैरेलल होगी, रे पासिंग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो सी से ही वापस जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिकली पास होगी वो पोल से रिफ्लेक्ट, पोल पे जितने एंगल से पड़ेगी वो पोल पे उतने ही एंगल से जाएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल रेज आएंगी, स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस पे मीट होंगी। नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, साइज ऑफ इमेज बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। और सेकंड पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी के भी पीछे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन द सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी का तो आपको पता ही है, सी पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो सी पे ही इमेज बनाता है। ये आपको बना के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा। जब आप इनको 3-4 बार बना लोगे रूल्स को फॉलो करके, तभी आपको बहुत इजी लगेंगे। अभी आपने बस 1-2 बार देखे हैं, कल ही आपने सीखे हैं बनाना, तो इतनी जल्दी इमेज फॉर्मेशंस मतलब आपको आ तो गया है समझ में, पर जब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे तब आप पे एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं कि मुझे सी भी लिखना होता है, मुझे एफ लिखना होता है, और मतलब मुझे स्केल यूज करना है, कंपास यूज करना है, सारी चीजें ध्यान में रखते हो आप। और अगर मान लो फ्री हैंड से भी बना रहे हो तो भी स्केल तो यूज फिर भी करना पड़ेगा, ताकि आपका सी और एफ का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, रेस बिल्कुल स्ट्रेट आए, पैरेलल आए, और वो जिस जगह से हमें पास करानी है उस जगह से पास भी करा पाए हम। तो स्केल होगा तभी आप सही से पास करा पाओगे। अगर आपको ये याद भी है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रखता हूँ तो मेरा पोजीशन इमेज का कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पे, और नेचर इमेज का रियल और इन्वर्टेड होता है। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा? अपूर्वा रेज हैंड कर रही है बेटा। ये टेबल आपको बनाने को कहा था, ये टेबल आपको बनाना है। अपूर्वा बोल सकते हो, आपको क्या बात कहनी है? मैम क्लास का टाइमिंग 8:30 का आ रहा है। अच्छा बेटा, तो दूसरी क्लास शुरू हो गई क्या? पता नहीं। Yes, ma'am. नो मैम। अच्छा, दूसरी क्लास शुरू हो रही है तो मैं आपका यहीं पे एंड कर रही हूँ। यहीं तक हमने किया है क्लास में भी। कॉन्वेक्स की हमने एक इमेज कर ली थी, एक इमेज आपको करनी है, तो आप ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वाली बनाकर, ये टेबल बनाकर कल लाएंगे। एंड पोजीशन ऑफ इमेज इनका लिख के इस टेबल में ही मेंशन है। कॉनकेव मिरर के यूजेस और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी आप लिख लेंगे। जब भी हमें कंसंट्रेट करना होगा रेस को, तब हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। एक तरफ लाइट को फोकस करना है। जब भी हमें फैलानी होगी लाइट को, बिल्कुल ज्यादा जोन में डालनी होगी, तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो ये आपको यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। यूजेस का इसका मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी, आप इन्हें कॉपी में लिख लेना। इसके बाद मैं अभी और नहीं डिस्कस कर रही। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी आपको लिखना है कॉपी में। क्लियर? आई विल बी सेंडिंग दिस होल पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पे। ओके यस मैम। मैम कल आप एक बार रिफ्लेक्ट, हाँ जी, कल आप एक बार रिफ्लेक्शन रूल्स बता दोगी रिफ्लेक्शन दोबारा से? रूल्स? यस मैम। ठीक है, बता दोबारा देंगे, इजी है वो, दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। ओके। मैम फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की भी है। अभी हमने देखा वेव नेचर की भी है,
और पार्टिकल नेचर की भी है। तो पार्टिकल नेचर की वजह से यानी उसमें स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, पैकेट ऑफ लाइट बोला जाता है फोटोन को। तो स्ट्रीम ऑफ लाइट में जब हमारी लाइट रे आती है, भले ही हम उसे रेज से दिखा रहे हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, पैकेट्स होते हैं, और हर पैकेट में कुछ एनर्जी होती है। लाइट की एनर्जी आपको पता है, लाइट भी एनर्जी है। तो वो जब किसी ऐसे मेटल सरफेस पे पड़ती है जो जिसकी कह सकते हैं जो जल्दी एक्साइट हो जाता है, रोशनी के पड़ने से ही वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से रिलीज होके लाइट को एब्जॉर्ब करके मेटल से रिलीज होके एक्साइट हो जाए, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये लाइट का एक फिनोमिना है जो हम आगे की हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इस स्लाइड में बस दे दिया था क्योंकि इंट्रोडक्शन में पूरा स्लाइड की प्रॉपर्टी बता रहे, ठीक है। पर हमारे सिलेबस में जो है वो हमें एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है। 11th में आप इसको डिटेल में पढ़ते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सोलर पैनल्स में काम आता है। हम सोलर पैनल्स में देखते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर्स के पूरे वो सोलर सेल्स होते हैं, तो उसमें काम आता है। जैसे ही सोलर सेल पे लाइट पड़ी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो बिजली बनाते हैं, और वो बिजली स्टोर हो जाती है, फिर वो यूज हो। क्लियर? यस मैम। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है? Yes, ma'am.